सबसे पहला क्वेश्चन इस चैप्टर का कि अप्रोच कंट्रोल सर्विसेज होती क्या है। तो ये हमने एयर ट्रैफिक सर्विसेज वाले चैप्टर में पढ़ा था कि अप्रोच कंट्रोल सर्विसेज एयर ट्रैफिक सर्विसेज का एक प्रोविजन है जो अराइवल या डिपार्चर एयरक्राफ्ट को एग्जीक्यूट करती है। तो इस चैप्टर में हमने अप्रोच कंट्रोल सर्विस की, अब जब हमने डेफिनेशन पढ़ ली है तो इसके आगे चलते हैं। सबसे पहला टॉपिक, प्रोसीजर्स फॉर डिपार्टिंग एयरक्राफ्ट। General clearance for departing aircraft shall specify when necessary for the separation of aircraft direction of takeoff and turn up after takeoff, heading or track to be made good before taking up the cleared departure track level to be maintained before continuing to climb to assigned level। तो दोस्तों इस पहले पैराग्राफ में वही बताया गया जो मैंने आपको अभी ऊपर बताया है कि अप्रोच कंट्रोल सर्विसेज आने वाले एयरक्राफ्ट जो उनसे टेक ऑफ कर रहे हैं उनको एग्जीक्यूट करता है, उनको क्लियरेंस देता है। इसका अगला टॉपिक, मिनिमम सेपरेशन बिटवीन डिपार्टिंग एयरक्राफ्ट। तो जो एयरक्राफ्ट दोस्तों डिपार्ट कर रहे हैं उनके बीच कितना मिनिमम सेपरेशन होना चाहिए, ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था दोस्तों। अगर आपने अभी तक पिछले वाली वीडियो नहीं देखी, हमारे पिछले चैप्टर की जो 6 चैप्टर की वीडियो थी वो आप देख सकते हैं, ऊपर आई बटन में आ जाएगा, आप उसे जरूर देख लीजिए वरना आपको ये चैप्टर बिल्कुल समझ नहीं आएगा। तो ये हमने यही सेम पढ़ा था, 1 minute separation if aircraft are to fly on track diverging by at least 45 degrees immediately after takeoff. So if two aircraft are departing from the same aerodrome and they are and immediately after takeoff they both make an angle of 45 degrees or more, then they should have 1 minute separation so that lateral separation is provided। कि हमने पिछले चैप्टर में ये तो पढ़ा था। अब इसका आता है 2 minute separation। 2 minute separation when take off when the preceding aircraft is 40 knots or more faster than the following aircraft and both aircraft proposed to follow the same track। तो अगर दोनों एयरक्राफ्ट सेम ट्रैक पे है और आगे वाला एयरक्राफ्ट की जो स्पीड है 40 नॉट या उससे भी ज्यादा है पीछे वाले एयरक्राफ्ट से, तो उन दोनों के बीच 2 मिनट का सेपरेशन होना चाहिए टेक ऑफ के दौरान। 5 minute separation while vertical separation does not exist if a departing aircraft will be flown through the level of a preceding departing aircraft and both aircraft propose to follow the same track. Action must be taken to ensure that the 5 minute separation will be maintained or increased while vertical separation does not exist। तो इस स्टेटमेंट को मैं एक इस डायग्राम के थ्रू समझाना चाहूंगा। मान लीजिए अभी ये वाला जो एयरक्राफ्ट है इसको हम ए मानते हैं और यहाँ पर एक जो एयरक्राफ्ट है उसको बी। तो अगर फ्लाइट लेवल 60 पे आना है यानी 6000 फीट पे आ रहा है, उसी लेवल पे आना है जिस लेवल पे एयरक्राफ्ट ए फ्लाई कर रहा है और दोनों सेम ट्रैक पर भी है, तो दोनों के बीच 5 मिनट सेपरेशन होना चाहिए। अगले टॉपिक पे पढ़ते हैं, इंफॉर्मेशन फॉर डिपार्टिंग एयरक्राफ्ट। Meteorological conditions. Information regarding significant changes in the meteorological conditions in the takeoff or climb out area obtained by the unit providing approach control service after a departing aircraft has established communication with such unit shall be transmitted to the aircraft without delay, except when it is known that the aircraft already has received this information। दोस्तों इस स्टेटमेंट का, इस पैराग्राफ का यही मतलब है कि अगर टेक ऑफ या क्लाइंब आउट एरिया में कोई मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस चेंज होती हैं तो एयर अप्रोच कंट्रोल सर्विसेज इमीडिएटली विदाउट एनी डिले एयरक्राफ्ट को रिपोर्ट करना चाहिए। A very important point to note here is that the changes in the meteorological conditions should be significant. Significant changes in this context include those relating to the surface wind direction or speed, visibility, runway visual range, or air temperature for turbine engine aircraft, and the occurrence of thunderstorm or cumulonimbus moderate और severe turbulence, wind shear, hail moderate और severe icing। तो ये सारे मेट्रोलॉजिकल कंडीशन बताई गई हैं जो सिग्निफिकेंट होनी चाहिए, सिग्निफिकेंट स्केल पे होनी चाहिए, तभी अप्रोच कंट्रोल सर्विसेज फ्लाइट क्रू को इन्फॉर्म करेंगे। ऑपरेशनल स्टेटस ऑफ विजुअल और नॉन विजुअल एड्स। Information regarding changes in the operational status of visual or non-visual aids essential for take-off and climb shall be transmitted without delay to a departing aircraft। तो जो एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर रहा है अगर कोई विजुअल या नॉन विजुअल एड में कोई
ऑपरेशनल चेंज आता है उनके स्टेटस में, तो ये इंफॉर्मेशन जल्द से जल्द डिपार्टिंग एयरक्राफ्ट को रिपोर्ट करनी चाहिए। अगले टॉपिक पे आते हैं, प्रोसीजर्स फॉर अराइविंग एयरक्राफ्ट। जनरल, at aerodromes where standard instrument arrivals stars have been established, arriving aircraft should normally be cleared to follow the appropriate star. The aircraft shall be informed of the type of approach to expect and runway in use as early as possible. पहले तो स्टार की फुल फॉर्म क्या होती है, वो होती है स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट अराइवल। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभार पूछ ली जाती है कि स्टार का क्या होता है, तो अलग अलग एब्रीविएशन दी होती है, अलग अलग फुल फॉर्म दी होती है, लेकिन जिसकी सही फुल फॉर्म है वो है स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट अराइवल्स। तो इस पैराग्राफ का मतलब ये है कि जिस भी एयरोड्रोम पे स्टार एस्टैब्लिश्ड है, उस एयरक्राफ्ट को अराइवल की क्लियरेंस दे देनी चाहिए टू फॉलो स्टार। After coordination with the approach control unit, the ACC will clear the first arriving aircraft for approach rather than holding a fix. तो अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अप्रोचेस। अप्रोचेस दोस्तों दो तरह की होती है, एक होती है विजुअल अप्रोच और एक होती है इंस्ट्रूमेंट अप्रोच। सबसे पहले हम पढ़ेंगे विजुअल अप्रोच के बारे में। तो आइए देखते हैं विजुअल अप्रोच होती क्या है। विजुअल अप्रोच इज एन अप्रोच बाय एन IFR फ्लाइट when either part or all of an instrument approach procedures is not completed and the approach is executed in visual reference to terrain. तो विजुअल अप्रोच वो अप्रोच होती है जिसमें इंस्ट्रूमेंट प्रोसीजर्स का कंप्लीटेड नहीं होते और जो अप्रोच होती है वो विजुअली ऑपरेट होती है टेरेन की रेफरेंस में। इसे विजुअल अप्रोच कहते हैं। क्लियरेंस फॉर एन IFR फ्लाइट टू एग्जीक्यूट अ विजुअल अप्रोच में बी रिक्वेस्टेड बाय पायलट और इनिशिएटेड बाय कंट्रोलर। तो या तो पायलट विजुअल अप्रोच की रिक्वेस्ट करेगा या फिर कंट्रोलर उसको इनिशिएट करेगा विजुअल अप्रोच के लिए। द कंट्रोलर शैल नॉट इनिशिएट अ विजुअल अप्रोच व्हेन देयर आर रीजन टू बिलीव दैट फ्लाइट क्रू कंसर्न्ड इज नॉट फैमिलियर विद द एयरोड्रोम एंड इट्स सराउंडिंग टेरेन। तो कंट्रोलर को विजुअल अप्रोच के लिए क्लियरेंस नहीं देनी चाहिए अगर उसे लगता है कि फ्लाइट क्रू अप्रोच नहीं कर पाएगा। Controller should take into consideration the prevailing traffic and meteorological conditions before initiating visual approach. तो कंट्रोलर को विजुअल अप्रोच इनिशिएट करने से पहले मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस का भी ध्यान में रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। एयरक्राफ्ट में बी क्लियर्ड फॉर डायरेक्ट बेस लाइक फाइनल इफ देयर इज रीजनेबल एश्योरेंस दैट विजुअल अप्रोच एंड लैंडिंग कैन बी कंप्लीटेड। तो अगर कंट्रोलर को लगता है कि विजुअल अप्रोच कंप्लीट हो पाएगी तो उसे एयरक्राफ्ट को क्लियरेंस दे देनी चाहिए। सेपरेशन शैल बी प्रोवाइडेड बिटवीन एन एयरक्राफ्ट क्लियर टू एग्जीक्यूट अ विजुअल अप्रोच एंड अदर अराइविंग एंड डिपार्टिंग एयरक्राफ्ट। When clearance to execute visual approach has been issued, it shall be the responsibility of pilot to maintain terrain clearance. तो एक बार विजुअल अप्रोच कंट्रोलर ने इनिशिएट कर दी कि आप विजुअल अप्रोच कर सकते हैं, तो पायलट की जिम्मेवारी है कि वो टेरेन क्लियरेंस मेंटेन करें। विजुअल अप्रोच बाय फ्लाइट क्रू। A flight crew may request visual approach if he has runway in sight and the pilot can maintain visual reference to terrain subject to following conditions only. तो पायलट भी जो है वो विजुअल अप्रोच रिक्वेस्ट कर सकता है अगर रनवे उसके इन साइट में और वो टेरेन से जो जिसमें लैंडिंग टेरेन है उससे एक विजुअल रेफरेंस रख पा रहा है। और ये इनके साथ में जो कंडीशंस होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि देयर शुड बी मिनिमम विजिबिलिटी RVR of 2800 मीटर फॉर कैटेगरी A and B एयरप्लेन्स, 3200 मीटर फॉर कैटेगरी C एयरप्लेन्स एंड 3600 मीटर फॉर कैटेगरी D एयरप्लेन्स। ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, न्यूमेरिकल जहाँ नंबर्स आ जाते हैं यहाँ पे ये लाइन इंपॉर्टेंट बन जाती है। पूछ लेते हैं कि कैटेगरी C के लिए कितनी RVR होनी चाहिए अगर पायलट को विजुअल अप्रोच की रिक्वेस्ट करनी है। तो आंसर है 3600 मीटर और 3200 meters. If visual approach is requested for a runway which has only a circling approach, the ground visibility shall not be less than 5 km. Again an important line. Circling approach क्या होती है वो हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, लेकिन सर्कलिंग अप्रोच के लिए जिस रनवे पे से सर्कलिंग अप्रोच होती है उस पे 5 किलोमीटर से ज्यादा की या 5 किलोमीटर की विजिबिलिटी होनी बहुत जरूरी है। Either the reported ceiling is at or above the level of beginning of the initial approach segment, or the pilot reports
at the level of the beginning of the initial approach that this approach segment or at any time during the instrument approach procedure that the meteorological conditions are such that with a reasonable assurance a visual approach and landing can be completed. तो अगर पायलट को भी लगता है कि मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस विजुअल अप्रोच के लिए फेवरेबल है तो उसे विजुअल अप्रोच के लिए रिक्वेस्ट कर लेनी चाहिए. The pilot at the time of requesting for visual approach shall give position report. The pilot shall advise the controller immediately when weather has deteriorated and unable to keep the terrain in sight, unable to continue flight, additional spacing is required from preceding aircraft. तो पायलट को अगर उसने विजुअल अप्रोच रिपोर्ट कर ली और अगर वेदर खराब हो गया तब उसे रिपोर्ट करनी चाहिए. अगर वो फ्लाइट कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है तो उसे रिपोर्ट करनी चाहिए. या फिर अगर उसको जो उसके आगे वाला एयरक्राफ्ट है उससे ज्यादा सेपरेशन की उससे ज्यादा स्पेसिंग चाहिए तो भी उसे कंट्रोलर को रिपोर्ट करना चाहिए. ये सब हमने पढ़ा विजुअल अप्रोच के बारे में. अब हम पढ़ेंगे जो सेकेंड अप्रोच होती है जो कि इंस्ट्रूमेंट अप्रोच होती है. आइए उसे पढ़ते हैं. Instrument approach. The approach control unit shall specify the instrument approach procedure to be used by arriving aircraft. A flight crew may request an alternative procedure and if circumstances permit shall be created accordingly. Instrument approach होती क्या है? Instrument approach वो होती है कि हम instrument approach procedures को use करते हुए हम approach करते हैं किसी एरोड्रोम पे तो उस approach को हम instrument approach कहते हैं. इसके आगे बढ़ते हैं. इसका अगला टॉपिक एक्सपेक्टेड अप्रोच टाइम EA2. An expected approach time shall be determined for an arriving aircraft that will be subjected to a delay of 10 minutes or more. The expected approach time shall be transmitted to the aircraft as soon as practicable and preferably not later than at the commencement of its initial descent from cruising level. तो कोई एयरक्राफ्ट कितनी टाइम में एयरड्रोम को अप्रोच करेगा वो उसे हम एक्सपेक्टेड अप्रोच टाइम कहते हैं. और ये एक्सपेक्टेड अप्रोच टाइम कंट्रोलर का काम होता है पायलट को रिपोर्ट करना. A revised expected approach time shall be transmitted to the aircraft without delay whenever it differs from that previously transmitted by 5 minutes or more or such lesser period of time as agreed between the ATS units concerned. तो अगर एक्सपेक्टेड अप्रोच टाइम में 5 मिनट या उससे ज्यादा का डिले होता है तो अप्रोच कंट्रोल सर्विसेज का काम है इमीडिएटली पायलट को रिपोर्ट करना. ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है. 5 मिनट्स को याद रखिएगा. 5 मिनट या उससे ज्यादा ये क्वेश्चन में कई बार आ रखा है. 5 मिनट्स कितना डिले सिग्निफिकेंट होता है अप्रोच कंट्रोल यूनिट को पायलट को रिपोर्ट करने के लिए. तो 5 मिनट और मोर इज द आंसर. An expected approach time shall be transmitted to the aircraft by the most expeditious means whenever it is anticipated that the aircraft will be required to hold for 30 minutes or more. Expected approach time तब भी पायलट को बतानी चाहिए, कंट्रोलर को पायलट को बतानी चाहिए अगर उसको 30 मिनट से ज्यादा का होल्ड करने के लिए बोला गया है तो. The holding fix to which an expected approach time relates shall be identified together with the expected approach time whenever circumstances are such that this would not otherwise be evident to the pilot. Onward clearance time. In the event an aircraft is held en route or at a location or rate other than the initial approach fix, the aircraft concerned shall as soon as practicable be given an expected onward clearance time from the holding fix. The aircraft shall also be advised if further holding at subsequent holding fix is expected. तो देखिए दोस्तों कभी कभार क्या होता है कि अब एयरक्राफ्ट को अप्रोच करने से पहले एक लोकेशन पे या किसी एड की रेफरेंस में एक जगह पे होल्ड कर दिया जाता है अप्रोच से पहले. तो ऑनवर्ड क्लियरेंस टाइम होता है वो टाइम जिसमें वो एयरक्राफ्ट उस होल्डिंग पोजीशन से लीव करने की एक्सपेक्ट करता टाइम, वो उस टाइम को हम ऑनवर्ड क्लियरेंस टाइम कहते हैं. डेफिनेशन लिखी हुई है. ऑनवर्ड क्लियरेंस टाइम इज द टाइम एट विच एन एयरक्राफ्ट कैन एक्सपेक्ट टू लीव द फिक्स एट विच इट इज बीइंग हिल्ड. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. ऑनवर्ड क्लियरेंस टाइम सिर्फ इतना ही है. आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे. ये अगला टॉपिक इंफॉर्मेशन फॉर अराइविंग एयरक्राफ्ट. तो जो एयरक्राफ्ट लैंड हो रहे हैं उनके लिए कंट्रोलर और पायलट के बीच क्या क्या इंफॉर्मेशन
शेयर होनी चाहिए। As early as practicable after an aircraft has established communication with the unit providing approach control service, the following elements of unit information in the order listed shall be transmitted to the aircraft with the exception of such elements which it is known the aircraft has already received. Type of approach and runways, तो ये वो पॉइंट्स है जो ये सारी पॉइंट्स हैं जो कंट्रोलर को एयरक्राफ्ट को बतानी चाहिए। टाइप ऑफ अप्रोच एंड रनवे यूज meteorological information as follows: current runway, surface conditions in case of precipitations and or other temporary hazards, changes in the operational status of visual and non-visual aids essential for approach and landing। चिंता मत करिए दोस्तों, ये आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, हाँ इसे समझ जरूर लीजिए। If it becomes necessary or operationally desirable that an arriving aircraft follow an instrument approach procedure or use a runway other than the initial stated, the flight crew shall be advised without delay। तो अगर कंट्रोलर को उनकी अप्रोच, अगर उसने कोई और पहले अप्रोच बोली हुई थी कि आप जैसे विजुअल अप्रोच करिए, अगर उसका चेंज होता है कि आपको कहता है इंस्ट्रूमेंट अप्रोच करिए, या फिर उसने रनवे कुछ और बोला था, रनवे भी चेंज हो गया है, तो उसको कंट्रोलर की ड्यूटी है, अप्रोच कंट्रोल सर्विसेज की ड्यूटी है कि वो पायलट को इमीडिएटली विदाउट एनी डिले इन्फॉर्म करे। At the commencement of final approach, the following information shall be transmitted to aircraft: significant changes in the mean surface wind direction and speed। तो अगर mean surface wind direction, विंड की डायरेक्शन और स्पीड में कोई चेंजेस आते हैं और कितने आते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, तो ये कंट्रोलर को बताना चाहिए पायलट को। If the controller possesses wind information in the form of components, the significant changes are: mean headwind component of 10 knots, mean tailwind component 2 knots, mean crosswind component 5 knots। इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट जो 3 लाइनें हैं वो ये हैं। इसमें सिर्फ ये पूछा जाता है मीन हेडविंड कंपोनेंट सिग्निफिकेंट स्केल पे कितना होना चाहिए, 10 नॉट, टेलविंड 2 नॉट और क्रॉसविंड कंपोनेंट 5 नॉट। इसे अच्छी तरीके से दोस्तों याद कर लीजिए। The latest information if any or wind shear and or turbulence in the final approach area, the current visibility representative of the direction of approach and landing, or when provided the current runway visual range values and the trend if practicable supplemented by slant visual range value। तो ये सारी इंफॉर्मेशन भी, जैसे विंड शेयर की इंफॉर्मेशन, टर्बुलेंस की, विजिबिलिटी की, ये भी कंट्रोलर अप्रोच कंट्रोल सर्विसेज को पायलट को कम्युनिकेशन के थ्रू बताना चाहिए। During final approach, the following information shall be transmitted without delay। तो ये सारी इंफॉर्मेशन दोस्तों एक बार पढ़ लीजिएगा, ये भी जैसे इम्पोर्टेंट है चैप्टर के वाइज, बट इनसे बहुत कम क्वेश्चन आए हैं। फिर भी the sudden occurrence of hazards, example unauthorized traffic on the runway, significant variations in the current surface wind expressed in terms of minimum and maximum values, significant changes in runway and surface conditions, changes in the operational status of required visual and non-visual aids, changes in observed RVR values in accordance with the reported scale in use, or changes in the visibility representative of the direction of approach and landing। तो ये सारे भी मेट्रोलॉजिकल बेसिकली चेंजेस हैं जो आते हैं और कंट्रोलर अप्रोच कंट्रोल यूनिट को पायलट को बतानी चाहिए एट द टाइम ऑफ अप्रोच, अगर वो अप्रोच कर रहा है तो अप्रोच कंट्रोल सर्विसेज का चैप्टर हुआ खत्म। जाने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी एजुकेशनल वीडियोस एविएशन के बारे में और डीजीसी एग्जाम्स के बारे में लाता रहूंगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।